एंड्रू टेट ने जेल जाने के पहले प्रिडिक्ट किया था कि वो जेल जाने वाला है. What he believes is there are some forces which are running this world. और अगर तुम उनके अगेंस्ट जाते हो, they will shut you down. Basically, वो तुम्हें 3 स्ट्राइक देते हैं. पहली स्ट्राइक वो तुम्हें बैन कर देंगे हर एक जगह से. Is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. जो एंड्रू के साथ हुआ था लास्ट ईयर, उसका YouTube was taken down, his Instagram was shut down, his Uber and his Airbnb was also taken down. Second स्ट्राइक होती है जब Strike 2 is they try and put you in jail for no reason. तुम्हें जेल भेजा जाता है, जो right after giving this interview is what happened with him. Why did you say that? And then finally there's a third strike. And strike 3 is they kill you. You're gonna be killed. Now I'm not sure what he's saying is true or not, कि ये forces और ये matrix exist करता है या नहीं. But पहली की जो इसकी 2 स्ट्राइक थी, वो टाइम के साथ हमें दिख गया है कि वो सच हो गई हैं. Now I don't know about all this, and there's no way for us to verify. But there are still some things that I agree with him on, and there are still some things that we can learn from. Number 1, you do not need money to get girls. You don't need money. You need the ability to provoke emotion. This is why girls like funny guys, because it makes them laugh. You know, it's provoking an emotion out of them. And I can vouch for this because 10 साल पहले जब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, I was a broke college kid. So I came from a background जहाँ पे finances were tight. बस मैं छुपता हुआ कॉलेज जाता था कि कोई देख ना ले, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियां होती थी वो महंगी महंगी गाड़ियों में आती थी. जो लौंडे होते थे जिनके साथ वो घूम रही होती थी, वो खुद अपनी महंगी गाड़ियों में आते थे. So I did not want to stand out. At the same time जो मैं कपड़े पहन रहा होता था, तो मैंने सिंपल सी चीज करी. Rather than कि मैं महंगे कपड़े खरीदूं, मैंने बोला भाई ये सारी चीजें बेकार है, अंगूर खट्टे हैं, मैं सस्ती चीजें करूंगा. तो मैंने सिंपल प्लेन टी शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया और पजामे में मैं कॉलेज जाने लग गया, और बाल मैंने अपने वहां पे बढ़ा लिया. When I did that, having no money, not knowing how to talk to girls, I focused on only one thing, कि यार लड़कियों से बात कैसे करते हैं. तो मैंने बाहर जाके लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करा, उनसे बात करनी स्टार्ट करी. Within a year, I got my first girlfriend, I lost my virginity, and I became one of the most popular guys in college. कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पे पैसा कितना है, बट जो ज्यादा फर्क पड़ता था कि the way I'm talking to someone, क्या मैं उनको अप्रोच कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनको हंसा पा रहा हूँ, क्या मैं अट्रैक्शन बिल्ड कर पा रहा हूँ. उस टाइम पे तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था. I gave myself the permission कि यार ठीक है मेरे पे पैसा नहीं है, it's okay, because मैं अभी बस पढ़ाई कर रहा हूँ. बट जब कॉलेज खत्म होएगा, then of course you need to start earning money, and that's what Tate says as well. But the man, to be a valuable man, you need to have intellect, wit, intelligence, money, strength, all these things, and these things are only respectable if you've built them yourself, right? Men are valued on what they do and not by just existing. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. If you ever look at a baby or you look at a puppy, they hold inherent value. लड़कियां भागी भागी जाती हैं, oh my god, so cute, सोना baby, oh my god, खा जाऊंगी तुझे. शादी के टाइम पे अगर तुम किसी लड़की के घर जाओगे, उसका हाथ मांगने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तुम्हें, कि अंकल जी शादी करने दो, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो ये नहीं बोलेंगे यार बेटा आप दिखते तो बहुत चाहिए, आपका गेम बहुत अच्छा है. वो पूछेंगे भाई कमाते कितना हो, काम क्या करते हो, बेटी का ख्याल रख पाओगे या नहीं रख पाओगे. The same thing does not happen with women. That women can be born with value. Women reproduce, right? And if you're born pretty, you're automatically valuable. You don't have to do very much. Me being a man, if I think about getting married to a girl, और मैं ये नहीं सोच रहा होता हूँ कि वो लड़की कितना कमाती है. Of course, if she's working or she's doing something and she's not unemployed and she's smart, those are add-ons, but वो एक core criteria नहीं होता है. Practical example लेते हैं. Jay-Z walks into the Starbucks, सामने लड़की देखता है, बहुत cute है. If he likes her, he will get a number and plan to go on a date with her with the possibility कि यार मैं इससे शादी भी कर सकता हूँ. Men don't care about the financial resources that a girl has. When it comes to a girl, she can only date up. She cannot date down. वो बहुत rare occasions में होते हैं where a woman is fine being with an unemployed man. India में specifically arranged marriages होती हैं. शादी के बाद a lot of girls do not prefer to work. At the same time families भी बोलती हैं मत काम करो. So whatever the culture is वो सही है या गलत है, but that's the reality of the situation which Tate has spoken about number of times as well. Coming to the next point, गेम की बात हो गई, सक्सेस की बात हो गई, बट मैंने एक स्कूल की स्टोरी बताता हूँ. जब मैं स्कूल में 12th में गया, मैं बहुत पतला था और मेरे दोस्तों की वजह से वो मुझे अलग अलग लड़ाइयों में फंसा ही देते थे. प्लस आई वाज ऑब्सेस्ड विद गर्ल्स कि यार लड़कियों से बात करनी है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए. एट द सेम टाइम जो मैं स्कूल में इतना हीरो बनता घूमता हूँ, लोगों से लड़ाई करता हुआ और चौड़ में घूम रहा होता हूँ, किसी दिन किसी ने पकड़ लिया ना मेरे को और सही में बोला भाई तू ब्लफ कर रहा है, अपने जाट होने का फायदा उठा रहा है, तेरे को पेलेंगे, तो बड़ी सुताई होनी है मेरी. तो अंदर से बड़ा इनसिक्योर फील होता था. तो मैंने सोचा यार जिम जाना स्टार्ट करते हैं. बट नाउ माई गोल ऑफ गोइंग टू द जिम इज नॉट because I wanna just look good, like that's one goal, but also because मैंने ये realize करा है कि यार ये जो body में हम हैं, that is an asset. Your motivation to join the gym could be कि तुम्हें six pack abs चाहिए या तुम्हारी insecurity तुम्हें overcome करनी है, or it could be higher level motivation कि यार मुझे 70-80 साल तक fit रहना है, मेरे को dependent नहीं रहना है लोगों पे. You can use any of those things, but you need to go to the gym because you still need to take care of your physical body, जो Andrew Tate suggests everyone should be doing. Doesn't matter how you feel. You have duties and you have responsibilities as an adult, and you must comply and act a certain way regardless of how you feel. That is better for society as a whole, especially as I'm only teaching the tenets of listen, go to the gym anyway. Doesn't matter. You don't feel like it. Go anyway. Listen, your girlfriend left you. Your heart's broken. You're not allowed to stalk her. She doesn't want you. Get the fuck over it. Now moving on to the next point.
अब यार तुम लोग यहाँ पे आयरन मैन लाइफस्टाइल देख रहे हो काफी टाइम से, बट इवेंचुअली तुम्हारा गोल है कि तुम किसी लड़की के साथ एक डेट पे जाओ या कहीं हनीमून पे जा रहे हो शादी के बाद, या फिर तुम अपनी बहन के साथ कहीं पे घूम रहे हो। व्हाट्स गोना हैपन अगर कोई आके तुम्हारी बहन को या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है? हाउ डू यू प्रोटेक्ट हर? अब एक स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। मैं मनाली गया हुआ था, रोहतांग पास, एंड आई वाज देयर विद अ गर्ल। तो हमने बाइक रेंट करी वहाँ पे, बुलेट, और बुलेट से हम अटल टनल पार करके दूसरी साइड चले गए। व्हेनेवर आई ट्रैवल आई कैरी अ पेपर स्प्रे विद मी। सो वंस वी रीच देयर वी पार्क्ड द बाइक, वी वांटेड टू क्लिक पिक्चर्स। शाम का टाइम हो रखा था, 6 बजे हुए। व्हाइल क्लिकिंग द पिक्चर्स आई वाज लाइक बेबी जस्ट गिव मी द पेपर स्प्रे। शी गोज लाइक कि व्हाई डू यू नीड द पेपर स्प्रे? कुछ नहीं होने वाला, यू जस्ट वरी टू मच, यू थिंक टू मच। आई वाज लाइक दैट्स फाइन, but give me the pepper spray. I wanted near me. If something happened, I want it within my reach. I don't want it in your bag. So she's like, okay, fine, whatever, I'll give it to you, but stop thinking so much. As she gave me the pepper spray, साइड से एक हरियाणा नंबर की व्हाइट कलर की क्रेटा रुकती है। एक बंदा बाहर निकला हुआ है सनरूफ से, दूसरा बंदा ड्राइव कर रहा है। बोलते हैं हाँ भाई, क्या बात हो गई? वो बंदी मेरे साथ सीधा मेरे पीछे आके खड़ी हो गई एकदम से। सो नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कुड हैव बीन लाइक भैया नहीं, कुछ बात नहीं हुई है, हम तो ऐसी बस फोटो खींच रहे हैं, एंड एक्टेड ऑल पैनिक, एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग। बट बिकॉज़ मेरा थोड़ा जाट बैकग्राउंड है, थोड़ी बहुत फाइट्स में मैं हूं, एंड इफ देयर आर सिचुएशंस लाइक दीस व्हिच आई हैव बीन विद बिफोर, आई टेक अ स्टैंड एंड आई कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल आई एम विद। सो माय रिप्लाई वाज, कोई बात नहीं हुई भाई, बस खड़े हैं यहाँ, क्या बात होगी, तुम बताओ। तो द गाय गोज लाइक कि आगे रोहतांग पास खुला है क्या? मैं बेर ना भाई, मैं तो गया ही ना, तुम जाके देख लो, हम तो अरे खड़े हैं। एंड देन आई स्टार्ट टू इग्नोर हिम, बाय बोल के वो चले गए। फ्लिप द थिंग अराउंड, 2 लोग थे, मे बी वन ऑफ देम वुड हैव कम आउट एंड उन्होंने डिसाइड करा कि यार इस बंदे को पीटेंगे, ये तो वैसे ही सिम्पसा है, और इसकी बंदी किडनैप कर लेते हैं और फिर मार देंगे जान से। मी बीइंग अ मैन, आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस थिंग्स, इसीलिए वो पेपर स्प्रे था। एंड दैट्स व्हाट टेट सेज एज वेल। And as soon as a woman or a man is in trouble, when you look for backup, you look for masculine men. And masculine men have a duty to provide and protect those they care about. We have a duty to do things we don't feel like doing because we know we're supposed to do them. And that's why we stayed in the Titanic and died. That you need to be strong to protect the people that you love. If you're not strong, how do you take care of people that you love? अब आते हैं उस पॉइंट पे जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा था कि भाई तुम्हें मिलती हैं 3 स्ट्राइक्स। वो वीडियो शूट हुई थी आफ्टर एंड्रू टेट वाज कैंसल्ड, जब उसका इंस्टाग्राम बैन हो गया, उसका ऊबर बैन हो गया, उसके बैंक अकाउंट्स भी बैन कर रहे थे अमेरिकन एक्सप्रेस, क्रेडिट कार्ड उसके ब्लॉक हो गए थे। एज सून एज दैट हैपेंड, विद इन अ मंथ ही वाज अरेस्टेड विदाउट एनी प्रूफ एंड केप्ट इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उस टाइम पे ना कोई प्रूफ था, फिर भी कस्टडी में रखा हुआ था और हर महीने उसकी बेल बस डिनाई हो रही थी। दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड हियर। कैंसल कल्चर काफी सालों से बहुत सामने आ ही रखा है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी 3-3 घंटे लंबे पॉडकास्ट में से, जैसे जो रोगन के, एक छोटी सी क्लिप निकाली जाती है जो 6 साल पहले उन्होंने कुछ बात कही थी और उस पर उनको कैंसिल करा जाता है। If people don't like what you're saying, they don't like you, they're gonna just come out there and they're gonna cancel you. अब जो तीसरी स्ट्राइक है उसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है। What do you think आगे क्या होने वाला है? Comment down below. Let us know in your comment section below. If you like the video, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. This is Kshitij signing off. I'll see you guys in the next video. Peace.